Hi, all of you. How are you? A very warm welcome to you all to this video lecture. So let's start with next topic, that is hydrolysis of salt. Okay. So before going into hydrolysis, we'll study what are the types of salts. So salt are of four types. First type is salt of strong acid and strong base. So that is NaCl. This is of strong base NaOH and strong acid HCl. Na2SO4. Na2SO4 is again a strong base NaOH and H2SO4. This is again of NaOH, HNO3. KOH, HCl. KOH, HNO3. ये सब तुम लोग को नोट डाउन करके रखने हैं. सॉल्ट देख के पता चलना चाहिए कि ये सॉल्ट कौन से एसिड से बना हुआ है और कौन से बेस से बना हुआ है. सो यू हैव टू नोट डाउन एंड यू हैव टू बाय हार्ट. मैं लाइव लेक्चर में पूछूंगी दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ विच बेस एंड विच सॉल्ट, तो तुम लोग को बताने आना चाहिए. ओके. सो इट इज मेड अप ऑफ, मैंने जिससे जिससे मेड अप ऑफ लिखा है वो नाम लिख दिए मैंने एसिड और बेस के. सो ऑल ऑफ यू कैन जस्ट नोट डाउन. नाउ salt derived from strong acid and weak base. Second salt है from strong acid and weak base. So ammonium chloride is made up of ammonium hydroxide, that is a weak base, and a strong acid HCl. CuSO4. CuSO4 is made up of weak base CuOH twice and H2SO4, that is a strong acid. Ammonium nitrate and NH4OH HNO3. CuOH twice HCl. Copper chloride. So strong acid है यहाँ पे HCl and weak base है CuOH twice. Third type of salt is made up of weak acid and strong base. So you can see this sodium acetate, that is made up of weak acid CH3COOH and strong base NaOH. KCN is made up of strong base KOH and weak acid HCN. Na2CO3 is made up of strong base NaOH and weak acid H2CO3. Similarly, fourth salt is salt of weak acid and weak base. तो इसके भी कितने सॉल्ट्स है? दो टाइप के सॉल्ट्स है. क्या है? दिस इज मेड अप ऑफ acetic acid and ammonium hydroxide. Both are weak acid, weak base. This is made up of ammonium hydroxide and HCN. That is weak acid, weak base. Okay, all of you. So there are four types of salt. और इन लोग क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस अंडरगो करते हैं. But what is actually hydrolysis? What is the hydrolysis? So hydrolysis is the reaction in which cations and anions or both the ions of salt reacts with ions of water to produce acidity, alkalinity or even न्यूट्रलिटी. सो कभी कभी सिर्फ कैटायन रिएक्ट करता है सॉल्ट का, कभी कभी सिर्फ एनायन रिएक्ट करता है, एंड कभी कभी क्या करते हैं? दोनों भी आयंस रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, एंड उसके वजह से ये रिएक्टिविटी के वजह से सोल्यूशन कैसा होता है? आइदर एसिडिक होता है या फिर बेसिक हो जाता है या फिर न्यूट्रल भी होता है. ठीक है. तो अभी ये कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस. सो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मैं एग्जांपल लेती हूँ NaCl का.
I have NaCl and I have added it in water. तो पहले क्या होगा, NaCl का हाइड्रेशन होगा. NaCl will get dissociate into Na plus Cl minus, एंड फिर Na प्लस क्या करेगा, वाटर से सराउंड हो जाएगा. Cl माइनस क्या करेगा, वाटर से सराउंड हो जाएगा. मीन्स अभी NaCl का क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया. एंड आफ्टर हाइड्रेशन स्लोली एंड स्लोली Na प्लस विल स्टार्ट रिएक्टिंग विथ वाटर. तो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है. तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है Na प्लस Cl माइनस, अभी वाटर के अंदर भी, वाटर को हम लोग, मैं थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे लिखती हूँ सो दैट तुम लोग को रिएक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो जाएगा. वाटर जो है ये क्या करेगा, HOH, this is plus minus. So these are the ions of water and these are the ions of salt. तो अभी यहाँ पे Na क्या करेगा, प्लस विल रिएक्ट विथ OH, तो मुझे क्या मिलेगा, NaOH, और माइनस विल रिएक्ट विथ प्लस, तो मुझे क्या मिलेगा, HCl. नाउ दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, strong electrolyte. This is strong acid, again a strong electrolyte. And यहाँ पे water है, तो इसका मतलब this will get completely dissociate into Na plus OH minus. This will get again completely dissociate into Na plus Cl minus. So जितने ions मेरे left hand side में है, उतने ही ions मेरे क्या है, right hand side में है. Means reaction हुआ ही नहीं है. जैसे मुझे मैंने एक बीकर लिया, एक बीकर में क्या किया, मैंने वाटर लिया है. ओके, आई हैव H plus OH minus ions and I have added NaCl. तो मेरे पास में Na plus Cl minus क्या है. अब इधर इन लोग का रिएक्शन हुआ तो मुझे मिला NaOH और HCl मिला. ठीक है, बट इनका NaOH जैसे ही बनता है ये वापस से डिसोसिएट होगा वाटर के अंदर. क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. HCl जो है वो वापस से डिसोसिएट होगा वाटर के अंदर क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो मेरे जितने आयंस है वाटर में इनिशियली, उतने ही आयंस मेरे प्रोडक्ट बनने के बाद में है. तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगी, द नंबर ऑफ आयंस in solution is same after reaction and before reaction. Okay, or I can say the concentration of H plus is equal to concentration of OH minus ions. So since दोनों का concentration same है, solution कैसा रहेगा, neutral रहेगा. Solution is neutral. So hydrolysis हुआ and solution क्या हो गया, न्यूट्रल रह गया. सोल्यूशन क्या बन गया, न्यूट्रल रह गया. ओके, ये हो गया फर्स्ट टाइप के सॉल्ट. सो यहाँ पे ऑल सॉल्ट्स which are made up of strong acid and strong base, the salts which are made up of strong acid and strong base, इनका हाइड्रोलिसिस पे जो सोल्यूशन बनता है ये कैसा बनता है, न्यूट्रल सोल्यूशन बनता है. क्योंकि दोनों भी कैसे है, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होने की वजह से कुछ सोल्यूशन पे फर्क ही नहीं पड़ता है. NH प्लस एंड OH का कॉन्सेंट्रेशन सेम रह जाता है एंड देयरफॉर सोल्यूशन क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. सो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं. अमोनियम क्लोराइड. When I add ammonium chloride into water, this is plus, this is minus. So मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड plus HCl. Now ammonium hydroxide is a weak base and this is a strong acid.
तो ये जो है ये पार्शली डिसोसिएट करेगा NH4 प्लस OH माइनस, मीन्स कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो OH माइनस प्रोड्यूस करेंगे एंड कुछ जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेगा. ओके, वेयर एज HCl जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा H प्लस एंड Cl माइनस पे. Okay, so now in this case the concentration of H plus is greater than concentration of OH minus. या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि Cl का हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, क्योंकि वो जितना यहाँ पे प्रेजेंट है उतना ही वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है. सो नो रिएक्शन ऑफ Cl माइनस विथ वाटर. तो रिएक्शन किसका हुआ? अमोनियम आयन का रिएक्शन हुआ. यहाँ पे क्या हुआ? केटोनिक हाइड्रोलिसिस हुआ है. क्या हुआ है? केटोनिक हाइड्रोलिसिस हुआ है. क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ जैसे 10 अमोनियम के आयन से तो 10 अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बट 10 में से शायद 2 ही सिर्फ वो क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है. सो इसके वजह से उसके सिर्फ 2 डिसोसिएट हो रहे हैं, बाकी के 8 जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है. ठीक है, मीन्स वो 8 जो है उन्होंने क्या किया है? रिएक्शन शो किया है. सो अगर ये 2 बनेगा तो ये भी 2 बनेगा. वेयर एज इफ दिस इज अमोनियम इज 10 तो क्लोरीन भी 10 है, तो ये भी यहाँ पे 10 ही बनेगा. HCl 10 ही बनेगा और इधर भी 10 मिलेगा. सो इधर भी 10 है और इधर भी 10 है. सो नो हाइड्रोलिसिस. और इधर भी 10 है एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 2, सो दिस इज ग्रेटर देन दिस. सो इसीलिए सोल्यूशन कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा. सोल्यूशन विल बी एसिडिक. या ऑल ऑफ यू दिस इज क्लियर? वापस से एक बार बताती हूँ मैं, ध्यान दो. यू हैव अमोनियम क्लोराइड एंड यू हैव वाटर. तो यहाँ पे क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और HCl बनेगा. Now HCl is a strong acid and this is a weak base. Since this is a weak base यानी क्या है? Weak electrolyte है and this is a strong electrolyte. So we have already studied strong electrolyte क्या करता है? Complete dissociation करता है. So this will get completely dissociated. This is a complete dissociation. H plus Cl माइनस में. वेयर एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करेगा? पार्शियल डिसोसिएशन करेगा. क्या करेगा? पार्शियल डिसोसिएशन करेगा. सो इसका मतलब है कि इसमें से कुछ जो है वो आयंस बनेंगे और कुछ जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ अमोनियम क्लोराइड के, तो 10 अमोनियम है और 10 क्लोरीन है. सो 10 में से 10 अमोनियम क्या करेगा? इसके साथ OH के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. ठीक है, NH4 plus will react with OH minus of water and this will give you ammonium hydroxide. ये 10 है तो मुझे ये मॉलिक्यूल्स भी 10 मिलेंगे. बट ये क्या कर रहा है? पार्शली हाइड्रोलाइज हो रहा है, पार्शली डिसोसिएट हो रहा है. तो इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो सिर्फ डिसोसिएट होंगे और कुछ जो है वो अनडिसोसिएट ही रहेंगे. तो जैसे मैंने 10 में से 2 डिसोसिएट हुए, so 2 are getting dissociated, so 8 जो है वो undissociated है. ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे केटोनिक हाइड्रोलिसिस हुआ है, क्योंकि मुझे सोल्यूशन में इधर इनिशियली कितने हैं? 10 अमोनिया के आयन से, बट डिसोसिएशन होने के बाद सिर्फ मुझे 2 ही आयन्स मिल रहे हैं. इसका मतलब 8 जो है
वो क्या हो गए हैं, हाइड्रोलिसिस हो गए, एंड दिस इज पॉजिटिव, सो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इट इज अंडरगोइंग केटोनिक हाइड्रोलिसिस. Okay, now if you talk about Cl, so Cl minus will react with H plus and it will give you HCl. This is 10, this will be 10. This is a strong acid, so ये वापस से क्या देगा, H plus Cl minus completely, and ये भी 10 ही रहेगा. तो इन और ये भी 10 रहेगा. तो इनिशियली भी 10 है, बाद में भी 10 है, so no reaction. Cl minus is not going any kind of hydrolysis. Cl minus is not undergoing hydrolysis. Okay. What is the reason? I have already explained here. Now, अगर ये दो बन रहा है तो OH भी दो ही बनेगा. And this is 2 and this is 10. So H plus का concentration is greater than OH minus का concentration, and therefore solution is acidic in nature. Okay. Now let's move on to next part. Similar explanation है salt of weak acid and strong base. So मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ CH3COONA माइनस प्लस, इसको मैंने वाटर में ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, CH3COOH plus NaOH. Now this is a weak acid and this is a strong base. This is a strong base, so it will get completely dissociated into Na plus NOH minus. And this will get partially dissociated into CH3COO minus plus H plus. So all of you, जितना Na यहाँ पे है उतना ही Na यहाँ पे है. So cation is not undergoing hydrolysis. Okay. अभी ये जो है यहाँ पे CH3COO minus will react with H plus और मुझे क्या मिलेगा, CH3COOH. If this is 10 तो मुझे ये भी 10 ही मिलेंगे. बट ये क्या करेगा, आगे आगे डिसोसिएट करेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में. बट इसका डिसोसिएशन पार्शियल है, मीन्स हो सकता है कि सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, बाकी कैसे रहे, वैसे की वैसे रहे. So now if you will see, initially there was 10 CH3CO minus and then finally there are 2. इसका मतलब 8 जो है उन लोग ने क्या किया है, हाइड्रोलिसिस किया है. 8 CH3COO minus ने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया. एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या कर रहा है, एनायन हाइड्रोलिसिस हो रहा है. सो दिस इज नोन एज एनोनिक हाइड्रोलिसिस. ओके. सिमिलरली Na प्लस क्या करेगा, OH माइनस के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाएगा. नाउ NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, सो इट विल गिव यू Na प्लस OH माइनस. तो जैसे ये 10 है तो मुझे ये 10 मिलेगा, तो ये भी 10 मिलेगा. सो यू कैन सी Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पहले और बाद में सेम है, तो इसीलिए cations are not reaction, no hydrolysis of cation. क्यों, क्योंकि बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन Na के मोल्स जो है वो सेम ही है, सो नो रिएक्शन. ऑल्सो the concentration of OH minus is greater than concentration of H plus and therefore solution कैसा रहता है, ये basic. Okay. Now let's move on to next, that is the salt of weak acid and weak base. So now here for this salt we have to study 3 conditions.
So what are those three conditions? नाउ सॉल्ट, ये सोल्यूशन जो है वीक एसिड वीक बेस का सोल्यूशन एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा या फिर न्यूट्रल बनेगा. इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ के एंड के बी. इट इज अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस, सो इसीलिए मुझे यहाँ पे के और के बी के वैल्यूज को भी कंसीडर करना पड़ेगा. सो फर्स्ट कंडीशन है, if Ka is equal to Kb, तो सोल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा. सेकेंड कंडीशन है, इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb, तो सोल्यूशन कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा. एंड थर्ड कंडीशन है, इफ Ka इज लेस देन Kb, देन सोल्यूशन कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा. सो अभी ये सब कैसे होगा, हाउ इट विल बी एसिडिक, हाउ इट विल बी बेसिक, वो अभी हम लोग यहाँ पे डेप्थ में स्टडी करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट कंडीशन स्टडी करते हैं, दैट इज Ka इज इक्वल टू Kb. So let us take the salt CH3COONH4. Okay. Now this salt is made up of weak acid. कौन से वीक एसिड से बना है ये? CH3COOH और बेस है NH4OH. अभी दोनों का Ka और Kb इज सेम. जरूरत नहीं है वैल्यू याद रखने का. ठीक है. नाउ ऑल ऑफ यू, अगर मैं इसके लिए CH3 मीन्स Ka का फॉर्मूला क्या था? H प्लस A माइनस अपॉन HA. और Kb का फॉर्मूला क्या था? B प्लस OH माइनस अपॉन BOH. ठीक है. So now from this what we can write down, Ka is directly proportional to H plus and Kb is directly proportional to OH minus. ठीक है. तो अभी यहाँ पे Ka is equal to Kb, इसका मतलब क्या है? H plus का concentration is equal to OH minus का concentration and therefore solution कैसा है? Neutral है. Solution is neutral. So now when we add CH3COONH4, this is minus, this is positive. Now this is weak acid, this is weak base, but इनका dissociation constant is same. तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोल्यूशन के अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम इक्वल टू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एंड सोल्यूशन विल बिकम न्यूट्रल. ओके. नाउ लेट अस स्टडी द सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या है? Ka ग्रेटर देन Kb. तो यहाँ पे जो मैं सॉल्ट लूंगी फॉर Ka ग्रेटर देन Kb, that is NH4F. Now when this reacts with water, तो क्या मिलेगा मुझे? कंपाउंड NH4OH plus HF. Okay. Now all of you, for NH4OH Kb का जो वैल्यू है it is 1.8 into 10⁻⁵ and for Kf
Ka का जो वैल्यू है 7.2 into 10 raised to minus 4. So concentration is same. सॉरी, के और के बी का वैल्यू इज डिफरेंट. इसका वैल्यू जो है वो कंपेरेटिवली लेस है. इसका मतलब क्या है कि ये जो OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है वाटर के अंदर, सोल्यूशन के अंदर, दैट इज लेस देन दैट ऑफ KF. OH minus concentration is less than H plus का concentration and therefore solution is acidic. तो यहाँ पे कैटोनिक हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है और एनोनिक हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, बट ग्रेटर एक्सटेंट में जो ज्यादा हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो किसका हो रहा है? कैटायन का हो रहा है. ओके, ना थर्ड कंडीशन स्टडी करते हैं. Kb इज ग्रेटर देन Ka. तो यहाँ पे मैं सॉल्ट लेती हूँ अमोनियम साइनाइड प्लस वाटर. तो क्या मिलेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. So now Kb value of ammonium hydroxide is 1.8 into 10 raised to minus 5, but that of Ka value of HCl 4 into 10 raised to minus 10. Value is 4 into 10 raised to minus 10. So now you can see here कि इसका जो वैल्यू है Kb का वैल्यू that is far better than that of OH HCN का वैल्यू. It is very less. So इसका मतलब क्या है कि जो H प्लस जो प्रोड्यूस होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम लेस देन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एंड देयरफॉर सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक होता है. सो नाउ इफ यू कंपेयर द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन, सो सिंस Kb इज ग्रेटर, तो और Kb ग्रेटर होने की वजह से कैटोनिक हाइड्रोलिसिस विल बी on greater extent than that of ionic hydrolysis and solution कैसा रहेगा? Basic रहेगा. So all of you, this was my last topic for today's video. पूरा theory है ये topic, so I hope you have understood it and not just read it from your textbook. एंड अगर नहीं समझ में आया है मैं लाइव लेक्चर में सॉल्व कराऊंगी, बट सबका ये काम है कि तुम लोग को इसको पढ़ के आना है एंड बी रेडी विथ नोट्स एंड फॉर ओरल. ओके ऑल ऑफ यू, सो आई विल स्टॉप हियर. मीट यू इन नेक्स्ट लाइव लेक्चर. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.